Hallelujah. Hallelujah. I mean, many times the mother-in-law and the daughter-in-law, they were quarreling and fighting. मेरा कहने का मतलब बहुत बार सास और बहू के बीच में तू और मैं का बात होते रहती है. And but not all. सबका बात नहीं है. But some mothers-in-law and daughters-in-law, they have a good relationship. कोई सास और बहू में अच्छा संबंध भी है. But we as the children of God, लेकिन हम लोग परमेश्वर के दास और दासियां, बेटा बेटियां होने के कारण, we are the women of God, हम लोग परमेश्वर के दासी होने के कारण, we will let us come and learn together from the life of Ruth. हम लोग को रूथ के जीवन से कुछ चीजें सीखना होगा. Because Ruth, she was a daughter-in-law. रूथ तो एक बहू है. Even though her husband died, उसका पति मरने के बाद भी she determined and she have a strong feelings to stay with her mother-in-law. उसने ऐसा निर्णय लिया कि वो अपना विधवा सास के साथ ही हम रहेंगे बोल के. Ruth and Naomi, they knew each other because Ruth, she married her son, Naomi's son. रूथ और नौमी एक दूसरे को रूथ नौमी का बेटा के साथ शादी करके बहू बन के आने के बाद ही एक दूसरा को जानते थे. And Ruth, she learned many things from her mother-in-law. रूथ ने बहुत सारी बातें अपना सास के द्वारा सीखी थी. Because earlier I was talking that Ruth was the mother, the woman who loved God and serving the living God. नौमी, मैं पहले बोल चुकी हूँ, नौमी परमेश्वर का डर मानने वाली और परमेश्वर का भक्त थी. And then Ruth, she saw the lifestyle of Naomi. इसलिए रूथ बहू ने नौमी अपना सास का जीवन चरित्र का बारे में जान रही थी. And then through her lifestyle influencing to Ruth's life. और सास का जीवन का चरित्र के द्वारा अपना बहू को छुआ था. And then Ruth, she loves Naomi. और इसलिए रूथ अपना सास नौमी को प्यार करती थी. Not she she make a commitment only to her husband. खाली पति को साथ अपना समर्पण नहीं था. But she had been committed her life for his family. लेकिन उनका पूरा परिवार के साथ उनका समर्पणता था. Nowadays it is very hard to find a woman who committed her life for a husband's family. और बहुत सारी कम मात्रा में ऐसा औरतें मिलती है, अभी बहू मिलती है जो पति को छोड़ के पूरा परिवार, पति ही नहीं पूरा परिवार के साथ समर्पित रहा. बहू कम मात्रा में मिलते हैं. And now we learn that Ruth, she committed her life for his family. अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं. रूथ ने अपना जीवन अपना पति का पूरा परिवार के लिए समर्पित की थी. That's why she says to her mother-in-law, wherever you go, I will go. इसलिए तो उसने अपना सास को बोली, जहाँ भी तू जाओगी वहीं मैं जाऊंगा बोली. Where your people will be my people. आपका लोग मेरे लोग होंगे. Your God will be my God. आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा. Where you die, I will die. आप जहाँ भी जाके मरोगी वहीं मैं भी मरने तैयार हूँ. No one can separate you and me. हाँ, आप और मुझसे कोई भी अलग कर नहीं सकता. This is the commitment that she did for her mother-in-law. यही एक समर्पण था बहू का जो अपना सास के ऊपर में उसने समर्पित किया था. It is not easy to leave her own land, own people, her own mother, father, brothers, sisters, and relatives. ये इतना आसान नहीं था अपना जगह, अपना देश, अपना जमीन, अपना भाई बहन, माता पिता को छोड़ के दूसरा साइड में जाना. And she had to go far away to another country. और दूसरा देश में दूर में चले जाना.
where she do not know anybody. वहां जहां वो किसी को भी नहीं जानती थी, It might be different languages. वहां हो सकता है दूसरा भाषा था होगा, It might be the different culture. they were हो living सके in. वहां दूसरा संस्कृति था होगा, But Ruth, she had decided and determined in her heart to go together with mother-in-law. लेकिन रूथ ने अपने आप को निर्णय कर चुकी थी कि वो जो भी हालत हो वो अपना सास को नहीं छोड़ेगी। The love for her mother-in-law makes Ruth to follow the mother-in-law wherever she goes. माँ सास का प्रेम ही उसको बांध लिया था कि सास जहाँ जाए वो भी सास के साथ साथ जा सके। Ruth, she trusted upon her mother-in-law. रूथ ने अपना सास के साथ भरोसामंद रहती थी। Ruth, she sacrificed her life for her mother-in-law. रूथ ने अपना जीवन अपना सास के लिए समर्पित कर चुकी थी, बलिदान कर चुकी थी। That's why she ready to leave everything for her. इसलिए तो सारा चीज रूथ ने छोड़ दिया ताकि उस सास के साथ जा सके। And then Ruth, she cared for her mother-in-law. That's why she don't want to leave her. क्योंकि रूथ अपना सास को देख रेख करती थी, इसलिए सास को छोड़ के जाने नहीं चाहती। Maybe Ruth, she was thinking, हाँ हो सकता है रूथ सोचती थी उनकी her husband already died, उसका पति तो मर गया, and her two sons also died. दोनों बेटा मर गए, And if me also, I left her, वो I प्रभु leave गए, her, मैं भी छोड़ के जाऊं, with whom she will live? किसके In साथ this ही old रहेगी age. ये बुढ़ापे का उम्र में। That is the way of her thinking. ये हो सकता है उसका सोचने का तरीका। So that because she wants to take care for her mother-in-law, हाँ हो सके वो अपना सास को देख रेख करने का चलते she have concern for her mother-in-law. और सास को देख रेख करने के चलते You know that this is the beautiful relationship of a mother-in-law and a daughter-in-law. आप जानते हैं यहाँ ये बहुत बढ़िया अच्छा संबंध सास और बहू का बारे में। You know, because of her the characteristic of Ruth. क्योंकि रूथ का जो चरित्र था, गुण था, You know, when you read the book of Ruth, आप जानते हैं जब आप रूथ का पुस्तक पढ़ेंगे and through Ruth's life, God's blessings comes to you and me also now. रूथ का जीवन का चलते, समर्पण का चलते परमेश्वर ने रूथ को इतना ब्लेस किया कि आप और हम भी एक दूसरे को जान सकें। And Ruth, she know how to respect and honor for her mother-in-law. रूथ जानती थी कैसे आदर करना और कैसे मान सम्मान करना अपना सास को बोल के। When you read this book of Ruth, I want you to read the book of Ruth because it is not so long. हम आपको यह बोलने चाहते हैं कि आप लोग जब भी समय रहता है रूथ की पुस्तक पढ़िएगा। You know, when Ruth and Naomi, they reach there in Judah, Bethlehem. जब ये लोग जूदा बेथलेहम का जूदा में पहुंच गए थे, Ruth, she was a foreigner. और रूथ तो एक विदेशी थी, प्रवासी। But when she reached there, she said to her mother-in-law, "I'll go to collect some grain from the fields." और वहां पहुंचने के बाद इसने बोली, माँ हम जाके कुछ बाला खोज के आपके लिए लेके आएंगे बोली। It means when they reach there, even her relatives, they don't take care for Naomi. और जब वहां पहुंचे उन लोगों का आपन लोग भी उन लोगों को देख रेख करने नहीं आया। But Ruth now she have a responsibility to take care for her mother-in-law. लेकिन रूथ एक जिम्मेवारी ली अपना सास को देख रेख करने के लिए। So she have to feel her. इसलिए सास को खिलाना था उसको। That's why she went to the fields to collect some leftover grain. इसलिए वो खेतों में जाती थी और छोड़ा हुआ बाला को कलेक्ट करती थी, So that she can provide the food for her ताकि mother. सास को साथ वो खाना को बटोर सके, उपाय कर सके। You know, the Ruth, she was the woman, a committed woman. रूथ आप जानते हैं रूथ एक समर्पित औरत थी। And because the way she honor and respect her husband or her mother-in-law, और उसका सास को आदर करना और सम्मान करने का तरीका, it makes Boaz the honor of the field of the grain fields to means to attract him. और बोआज जो वहां का जमींदार था
और उसका जीवन को अट्रैक्ट कर सकी रूथ। because the way she honored her और mother-in-law. वो अपना सास को जैसे आदर करती थी, वो आदर का संस्कार का चलते। You know, people, they look to us how we behave and we honor our own parents, our own mother-in-law, our own people. आप जानते हैं लोग आप और मुझे, हम लोग अपना सास को कैसे बर्ताव करते हैं, अपना लोगों को कैसे आदर करते हैं, इस बात को देखते हैं लोग। And then they will respect you in the same way. और वैसा ही आप जैसे आदर करते हैं आपका अपना लोगों को, वैसे लोग आपको भी वैसे आदर करने That's लगेंगे। why the Boaz, this is my favorite verse. ये बुआज, यहाँ वही कारण, ये मेरा एकदम फेवरेट पद है। In Ruth chapter 2 verse 12. 2 अध्याय का 12वां पद। He said, may the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। Hallelujah. आमेन, हालेलुया। Boaz, when he looks to Ruth, he said this word that the Lord will repay for what she has done. बोआज ने जब रूत को देखा तब उसने कहा यहोवा तुझे फल, तेरे कार्य का फल दे बोला। Because he has seen that the way she committed her life and her sacrifice. और क्योंकि उसने देखा कि अपना सास के लिए कैसे अपने आप को समर्पित किए बोल के। And he says that God will reward you whatever you have done. Richly he will reward you. तब यहाँ बोलता परमेश्वर बहुत धनी तरीका से आपको फल दे, आशीष दे, Because you have जो done, तूने किया है उसके ऊपर में आशीष दे बोलता है। because you have left everything for your mother-in-law. क्योंकि उसने बोला तेरी सास के कारण तूने सारा तेरा चीजों को छोड़ के तू सास के पास आई हो। And you know this blessing comes to Ruth's life. आप जानते हैं यही आशीष जो रूत के जीवन में आया है। If you sacrifice something, God will bless you richly. आप जो चीज समर्पित करते हैं कोई चीज, तो आपको परमेश्वर और आशीष देता है। Many times we think that if I sacrifice something, then I will lose everything. कई बार हम लोग सोचते हैं यदि हम समर्पित करेंगे तो मुझे लॉस हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, सोचते हैं हम लोग। But if you if you want something, you have to sacrifice something. लेकिन आप कुछ चीज पाने चाहते हैं तो आपको कोई चीज खोना होगा, समर्पित करना होगा। Like through this story of Ruth and Naomi. ये रूत और नोमी का कहानी के द्वारा, This is the story of a mother-in-law and a daughter-in-law. ये एक कहानी है सास और बहू का। Maybe a few of us who are sitting here on this online today. आज हम लोग ऑनलाइन में भी Very few, maybe you are a mother-in-law now. कोई के हम लोग सास बहू एक साथ में भी हैं, कोई सास लोग कम मात्रा में यहाँ बैठे हुए होंगे। But most of us, we are a daughter-in-law. ज्यादातर हम लोग बहू लोग यहाँ बैठे हैं। But one day we will be a mother-in-law. लेकिन एक दिन हम लोग भी सास बन जाएंगे। And one day we will be a daughter-in-law. और एक दिन हम लोग भी बहू बन जाएंगे। But I would like to encourage through these words. लेकिन हम इस पद के द्वारा आपको उत्साहित करने चाहती हूँ। Like Naomi, how she influenced her daughter-in-law. नोमी ने अपना जीवन के द्वारा कैसे अपना बहू को आकर्षित किया था और दिखाया था। So let us be as the mother-in-law, influenced by good examples. आइए वैसे अच्छी उदाहरण हम लोग अपना बहू को एक सास बनते हुए दिखा सकें। And we as the daughter-in-law, और हम लोग बहू होने के कारण we will follow the footstep of a mother. हम लोग का सास ने दिखाया हो अच्छा रास्ता को हम लोग भी पकड़ लें। And we will have the strong relationship. ताकि हम लोग सास और बहू में अच्छा संबंध हो जाए। Don't allow the misunderstandings to come to interfere the relationship between the mother-in-law and the daughter-in-law. सास और बहू के बीच में कोई ऐसा बाधक चीज आने ना दे जिससे हम लोग का संबंध खराब हो। We need to pray and learn how to respect, honor, love, care for a mother-in-law. हम लोग को प्रार्थना करना होगा कैसे आदर करना है सास को, कैसे सम्मान और मान करना है सास को बोल के।
Because देखरेख करना है बोलो। whatever we did for them, and then our daughter-in-laws, they will do the same thing. जो आप लोग अपना सास के लिए करते हैं, आपका बहू भी कल आके आपके लिए वैसा ही करेगी। So we need to respect each other. इसलिए हम लोग एक दूसरा को आदर करें। This is a beautiful story how Ruth and Naomi, they know how to respect each other, to honor each other. ये बहुत बढ़िया और अच्छा कहानी है कि नोमी और रूथ एक दूसरा में कैसे आदर और सम्मान के पात्र बन गए। They take care of each other. वो लोग एक दूसरा को देखभाल करने लगे, They concern for both of each other. एक दूसरा का देखरेख करने लगे और एक दूसरा के बारे में चिंता करने लगे, And they love each other. एक दूसरे में प्रेम में रहने लगे, प्रेम करने लगे। And they don't allow the world to come to destroy the relationship and the family. और वो लोग ऐसे चीजों को आने नहीं देते थे जिसके कारण उन लोगों का परिवार बर्बाद होता जाता था। Hallelujah. हालेलुया। So let us follow the footsteps of Ruth and Naomi. आइए नोमी और रूथ का जो ये लोग ने फॉलो किया वही रास्ता को हम लोग भी पकड़ लें। We have to sacrifice something to receive something. कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा, हम लोग को कुछ पाना है तो कुछ खो लें। We have to make a commitment to do anything. हम लोग अपने आप को समर्पित करें ताकि हम लोग कुछ पा सकें। We need a compassion in hearts to win something. हम लोगों को एकदम धैर्य धारण करना होगा कि कुछ पाने के लिए। If you want others to respect, we need to respect first. यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको आदर करें, आप आदर करने शुरू कीजिए दूसरा को। If you need love, यदि then आप give प्रेम love. चाहते हैं तो दूसरों को प्रेम करने लगे। If you need care, you care for others. आप चाहते हैं कि लोग आपको देखभाल करें, आप देखभाल करने शुरू करें। That is the reward that God will bless. यही है परमेश्वर का आशीष जो आपको देने चाहता है। So let us be the women of God. आइए हम लोग परमेश्वर का दासी होने के कारण We will pray and we will ask God's strength to give us so that the relationship between the mother-in-law and daughter-in-law will change into a good thing. हम लोग प्रार्थना करें कि हम लोग का सास और बहू का संबंध के कारण अच्छा चीजों को परिवर्तन कर सके, अच्छा चीज ला सके। You know, when you look into the serials, only the सास बहू का लड़ाई झगड़ा। आप जानते हैं जब आप टीवी सीरियल में देखते हैं ना, खाली सास और बहू का बीच का झगड़ा के बारे में वहां दिखाई देता है। But we are not going to follow that things. वो चीजों को हम लोग नहीं जाएंगे वो चीज लेने के लिए। Don't let that the things to influence you and me. वो चीज आपको इन्फ्लुएंस करे ऐसा नहीं होने दें। Then look to the word of God. आइए हम लोग बाइबल को देखें। And we have to come into our knees and pray. हाँ हम लोग आए और प्रार्थना करें हम लोग का आवश्यकता चीजों के लिए। Mother-in-law need to pray for daughter-in-law. सास को अपना बहू के लिए प्रार्थना करना होगा And daughter-in-law needs to pray for mother-in-law. और बहू को अपना सास के लिए प्रार्थना करना होगा। Together when they pray, एक साथ जब मिल के प्रार्थना the करेंगे family will be strong. तब परिवार एकदम शक्तिशाली बनेगा। Hallelujah. हालेलुया। So God bless through this word. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। Amen.